Every year, there are so many candidates who are doubtful about their written marks, and that's why some of them are not putting their full effort in personality test preparation or interview preparation, and they are not able to make to final. But there are many who are doing well in interview and they are making to final. So in this video, we will see some of the aspects, some of the dimensions of those who are having lesser marks in written part. Maybe you are getting little higher, but you are assuming little lesser. देखो यार, क्या होता है कि पेपर वन हो या पेपर टू हो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे होंगे, लेस मार्क्स आ रहे हैं, बट इन एक्चुअल थोड़ा ज्यादा भी आ जाता है. सपोज कोई कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि आई हैव 110 मार्क्स इन पेपर वन. पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें से भी थोड़े कम आ सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें भी थोड़े ज्यादा आ सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट 100% श्योर कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली करेक्ट. प्लस योर पेपर टू मार्क्स ऑल्सो वेरी. इन पेपर वन at least you are a little closer, but in paper 2 there is no certainty type of things now. In essay, if you are not up to that level, or if you are not frequent to write test taking feedback and all, then वैसे सिचुएशन में आपको पता नहीं होता है कि हमारे मार्क्स कितने हैं. स्टिल ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हों, जो भी आपके स्कोर आ रहे हों, चाहे पेपर वन पेपर टू, वंस you qualify written, once you qualify physical, you should give full dedication to your interview preparation. These some of these marks, these candidates are selected, and I have taken some of marks of those who are not selected. Let us take this candidate. Paper 1 marks is not great, it is 109, but paper 2 respectable. In interview, the person got very good marks. So selection is there, means recommended. Obviously, general category candidate selection is 311, but OBC 308, and so on. Okay. So this candidate, see, paper one marks higher, but paper two same, 81, 81. And written total is 219. Here it is just 190. Here 219 means 29 marks more here. But in interview, the person got just 90 marks. And that's the thing, key 309, and the person got recommended. So here also this person got 309 marks. This person also got 309 marks. If this person would have thought ki I have lesser marks, then result would have been different. तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है. वाई आई एम गिविंग एग्जाम्पल. दोनों को देखो, पेपर टू में दोनों के बराबर मार्क्स हैं, पेपर वन में इनके बहुत कम है, पेपर टू में दोनों के बराबर हैं, रिटन टोटल इनका बहुत कम है और इनका ज्यादा है. तो इनके पास ये थोड़ा और अच्छा इंटरव्यू में आता तो इनके रैंक बहुत अच्छे और होते. तो ये चीज को आपको रियलाइज करना है कि जिनके कम भी है तो आपको फुल एफर्ट लगाना है. यहां देखो, 119, 119, पेपर टू 80, रिटन पार्ट 199, एंड पर्सनालिटी टेस्ट 300, पर्सनालिटी टेस्ट 125, and aggregate marks is 324. So in paper 1, not that much grade. Paper 2 also average, like 81, 81. This person is also having 80. But interview, very good. This person, paper 1, normal, 114.25, not much. Paper 2 also, like all these three candidates, this person is also having 82. But and written
also 196, but interview is 120 and aggregate 360. Now see these candidates' marks. They are not recommended, okay? Paper 1, 107.5. Then paper 2, same like those of selected candidates, same. But written C, this person is also having 190. In last slide also I saw 190, but the person got selected. The reason is due to interview marks. So this person got C. 102, I will not say कि it is not good, but you in present time you need more. आज की डेट में 120 प्लस बहुत सारे लोग के आ रहे हैं, तो you must target for 120 or something. So not selected. This person, paper 1 also less, paper 2 also very less, and personality test also. So already out from competition. Then this person, paper 1 just 100, paper 2, see paper 2 here it is also a standard, you can say. Okay, then written total 182, but interview also 99, so not selected. This person 101.47, so 101 round off. Then paper 2 just 68, and personality test 78, so note. Here this person 103, 90, paper 2 means in respectable, then total 193, but in personality 102, so 295 not selected. This person 108, 1, okay, then 88, 189, then only 90. Why? I showed marks of these candidates. These all candidates are scored very less in paper 1. Some of them scored respectable in paper 2, but in interview, they got lesser marks. So those who are in this league, some candidates are message कि yes, I have this situation. तो आप इन चीजों को देखो. अब ये बोलोगे कि क्या ये कैंडिडेट जानबूझकर ये इन्होंने मेहनत नहीं किया, ऐसा नहीं मैं ये कर रहा हूं, हर पर्सन ने मेहनत किया, लेकिन आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है. समटाइम एक चीज आपको मानना पड़ेगा, समटाइम लक भी एक थोड़ा सा मायने रखता है. ऐसा नहीं है कि लक ही मायने नहीं, लक लिटिल मायने रखता है. कभी होता है कि वो उस दिन उस टाइम हमने कुछ बोला, हमने कुछ आंसर दिया, वो रॉन्ग वे में हो सकता है, या हमारा कोई आंसर है हमने अपने साइड से सही कहा, बट बोर्ड ने कुछ और फॉर्म में इंटरप्रेट किया. आपको 15 मिनट्स टाइम दिया जा रहा है, 15, 16, 17, 20 मिनट्स, किसी को लेस देन 15 भी इवन, तो आपको 15 टू 20 मिनट्स में ये बहुत डिफिकल्ट समटाइम हो जाता है. बट 24 का ये सारे मार्क्स जो है 24 का लिया गया. 24 में बहुत कैंडिडेट्स हैं जिनको 120 मार्क्स दिया गया. तो इस एंगल से सोचो अब कैसे करना है, क्या करना है, इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो. फिर जिन जहां आपको उचित लगता है, जो आपको लगता है कि यस हमें गाइडेंस कुछ दे सकते हैं, कुछ हमें सजेशंस दे सकते हैं, तो आप वैसे लोगों से सजेशन जरूर लो. हमेशा ध्यान रखो कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है, ये मत सोचो कि बस जाना है वहां और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसको रिप्लाई करना. नहीं, ये एक आपका फुल 150 मार्क्स है, और ये मार्क्स आपको फाइनल में भी सिलेक्शन करवा सकता है और नहीं भी करवा सकता है. तो छोटे छोटे चीजें होती है. हमारा जो डीएएफ होता है उसके एक एक एस्पेक्ट्स को देखना, प्लस हमारा जो आंसर है उसको रिफाइन करना बार बार. आप कितना भी करते हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वो छूट जाते हैं. तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे चीजों को लेना है जो करेंट डेवलपमेंट हो रहा है, और खास करके वो टॉपिक जिसका रिलीवेंस है आपके प्रोफाइल से, आपके फोर्स से, आपका प्रेफरेंस से, या आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से,
या आपके कोई अचीवमेंट से, तो वैसा कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उस पर ट्रैक करना है। प्लस while you are replying, your reply should be natural, it should have confidence, बॉडी लैंग्वेज आपका आपके वर्ड्स के साथ मैच करना चाहिए। आप जब बोलो तो एक आपका जो लॉजिक है या जो आपका आंसर है वो साउंड लॉजिक से बैक हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू नहीं है, कि देखो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां एमसीक्यू होते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो नहीं भी हमें आ रहा है तो कुछ तो उसमें टिक करना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ वट एवर यू स्पीक दैट शुड बी बैक्ड बाय लॉजिक, कि आपने क्यों कोई ऑप्शन चुना, कोई क्यों आंसर आपने चुना। आपने किसी चीज को, किसी आंसर को यदि लिया है, यदि सेलेक्ट किया है, तो उसका कुछ तो बैकअप होगा, कुछ तो आपका लॉजिक होगा कि क्यों आप ले रहे हो। कभी कभी जैसे है कि आपको टाइम देने की जरूरत होती है, कुछ क्वेश्चन में होते हैं सोचने की जरूरत होती है, तो 10-20 सेकेंड्स आप मांगो उनसे, 10-20 सेकेंड्स के लिए बोलो कि यस कैन आई टेक फ्यू सेकेंड्स, उसमें आप अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करो और उसके बाद रिप्लाई करना है। आंसर में सिंप्लिसिटी रखो। वर्ड्स आपको ऐसा नहीं है कि जहां थोड़े से एक्सप्लेनेशन वाला है तो आप यस और नो में बोलोगे, नहीं, जहां एक्सप्लेनेशन का है तो वहां फ्यू वर्ड्स रखो। इन नॉर्मल देखो अपना आंसर हो 10-20 सेकेंड्स में हम बता सकें उस एंगल से। जहां यस और नो है तो वहां एक्सप्लेनेशन अपने साइड से ना दो, उनको लगेगा तो वो बताएंगे। या किसी में आपको पॉइंट्स बहुत सारे आ रहे हैं तो फिर भी जनरली 3-4 पॉइंट्स आप बोलो, शॉर्ट एंड सिंपल। अपने साइड से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं जब तक कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने बोला जाए। तो ये मैंने स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने कुछ ने मैसेज किया था, कुछ के डाउट्स थे, कुछ कमेंट किए थे कि मार्क्स कम हैं, तो आप देखो बहुत ऐसे बच्चे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिमिटेड को दिखाया, एन नंबर ऑफ हैं कैंडिडेट्स। तो आपको ध्यान देना होगा कि यदि आपके रिटर्न में, देखो किसी का रिटर्न में बहुत अच्छा मार्क्स है, मान के चलो कि लास्ट टाइम सपोज जनरल का कट ऑफ 311 गया, ओबीसी का 308, तो सपोज करो कि जनरल कैंडिडेट में किसी का मार्क्स जो रिटर्न में था 230 था, सपोज करो, तो 230 यदि है तो इनके इंटरव्यू में 81 भी आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन किसी का 200 था तो उनको मिनिमम 11 तो लाना था, और ये जरूरी नहीं है कि 311 वाले भी कुछ अभी फाइनल नहीं उनका हुआ है, रिजर्व लिस्ट में उनके आएंगे। तो सपोज 82 लो, या यहाँ 200 है तो 112, तो किसी को 82 लाना पड़ रहा है जस्ट यहाँ, और 112, तो आपके जब कम है उधर, यदि लगता है आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूं कम, हो सकता है आपने जो सोचा है वो थोड़ा कम करके अपना कैलकुलेट किया कि एकदम प्रॉपर करेक्ट जो है मैं उसी का मार्क्स ऐड कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो आपके ज्यादा भी थोड़े आ सकते हैं, तो वो एडेड एडवांटेज है। नहीं, किसी का हो सकता है 2-4 नंबर कम भी आपका पड़ जाए। लेकिन यदि आपको अब ऐसा फील होता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, स्टिल यू गोट चांस ऑफ इंटरव्यू, तो आप अपना फुल फ्लेश्ड एफर्ट लगाओ। प्लस देखो अभी तो हमारे पास ऑप्शन है ना, कि वर्स्ट केस में हमारा सिलेक्शन ना भी हो तो हमारे लिए प्रतिभा सेतु में ऑप्शन तो मिल रहा है कि आपके पास एक्स्ट्रा जॉब के लिए भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसमें भी जाने के ऑप्शन है। तो यहाँ इंटरव्यू में जितना अच्छा करोगे वो आपके लिए फायदा है। लेकिन ये तो बात की बात है ना, हम क्यों नहीं एस्पायर करें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो, फाइनल लिस्ट में हमारा नाम हो, तो हम उसकी चीज के लिए करेंगे। और यदि एक बार 120 आराम से बहुत कैंडिडेट को आ गया तो हमारा भी एस्पायरेशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि किसी ने लास्ट किसी अटेम्प्ट में 80 लाया, नेक्स्ट टाइम 120 लाया, और ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको
बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हुए हैं। अब जो कैंडिडेट्स ऐसे बैकग्राउंड से आए या ऐसे एजुकेशनल आपका लाइफ रहा जिसमें आपको एक्सपोजर उस ढंग का ना मिला, जहाँ आप इंटरव्यू वगैरह दो, ग्रुप डिस्कशन करो, प्रेजेंटेशन दो, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। लेकिन कोई ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ आपको इन सारे चीजों का मौका मिला, तो आपको कम एफर्ट लगा करके भी हो सकता है। ठीक है। तो कितना भी मार्क्स आया, कितना भी खराब हो, जस्ट बॉर्डर पे भी हो, आपको फुल फोकस करना है। कुछ क्वेश्चंस की भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, या आप हमें मैसेज कर सकते हो। मेरे से जो पॉसिबल होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू।